तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर नवंबर 2016 वेरिएंस 42. We have done the June series. Now I'm going to start October November series. So first of all, we are going to discuss about November 2016 variance 42. Okay. Um, Transition elements are important matters because of their characteristic properties. Define what is meant by a transition element. An ion, an element which can form one or more stable ion having partially filled d orbital. For each of the following complexes, state the coordination number and the oxidation number of the transition element present. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड्स 4 हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी. यहाँ पर टोटल लाइगेंड्स 6 हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगी. State the type of bonding that exists between the ligand and the metal ion in these complexes. Dative bonding, suggest the structure of this complex and name its shape. Obviously बेटा ये आपके पास है Ml2X2. तो जब Ml2X2 की सिचुएशन होगी तो ऑब्वियसली आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, 3 डायमेंशनल टाइप. ये साइनाइड अटैच कर दिए और ये 2 अमोनिया अटैच कर दिए. The complex ion can be converted into this. Suggest a suitable reagent for this conversion. जाहिर सी बात है यहाँ से वाटर 6 थे, यहाँ वाटर 4 है, यहाँ क्लोराइड आ गया, तो इसका मतलब आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज किया होगा, और क्लोराइड आयंस ने वाटर को डिस्प्लेस किया, इसलिए टाइप ऑफ रिएक्शन में लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा. The complex ion shows stereoisomerism. Name this type of stereoisomerism. जाहिर सी बात है बेटा ये Ml2 Ml4X2 की सिचुएशन है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, मीनिंग आपको ऑक्टाहेड्रल और मीनिंग आपको सिस ट्रांस बना के देना है. तो ये है क्रोमियम, ये क्लोरीन सेम साइड पर हो गया तो सिस हो जाएगा, और क्लोरीन डायगोनली अटैच्ड हो गया तो ट्रांस हो जाएगा. ये हो जाएगा आपके पास H2O 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 and H2.
ये ट्रांस हो गया आपके पास और ये सिस हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, moist car air packs. Most car air packs contain a capsule of sodium azide. In a crash, sodium azide decomposes into its elements. Write an equation for the decomposition of sodium azide. तो ये है बेटा आपके पास 2NaN3, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Na में और नाइट्रोजन गैस में। Complete the dot and cross diagram for azide. Use the following key for the electrons. ये वाले जो सेंट्रल नाइट्रोजन है उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करो, जो ये वाले दो नाइट्रोजन है उसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, और इन दोनों में से किसी भी एक नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको आप इस बॉक्स से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो ये होगा आपके पास 1 2 3 4, दिस वन इज 5। ठीक है, और जो कॉर्नर वाले नाइट्रोजन है उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और जो एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है उस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ इस बॉक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। Lattice energies are always negative, showing that they represent exothermic change. What is meant by the term lattice energy? Lattice energy amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed from gaseous cation and anion under standard condition. Standard condition इसलिए क्योंकि ionic compounds solid होते हैं at room temperature and pressure. Explain why lattice energy represents an exothermic change, because it is a bond forming process. Next is use the following data and any relevant data from the data booklet to calculate the standard enthalpy change of the enthalpy change of formation of sodium azide. Include a sign in your answer. Show all your work. Okay. So हमने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ था, डेल्टा H phi F equals to delta H phi A plus ionization energy plus atomization of non-metal plus electron affinity plus lattice energy. फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम गिवन है +107, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आप डेटा बुकलेट से लेंगे। डेटा बुकलेट में गए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मुझे मिल रही है 436 प्लस, इशू इज कि ये जो एनर्जी दी हुई एग्जामिनर ने ये एटमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को कंबाइन करके दी है, ये हो जाएगा +142 प्लस लैटिस एनर्जी की वैल्यू है -732। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली इस 142 को रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइन करके। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी -47 किलो जूल्स पर मोल।
यहाँ पर हो जाएगा ये -47। फिर वो आपसे कह रहे हैं द लैटिस एनर्जी ऑफ रुबीडियम एजाइड इज दिस, suggest why the lattice energy of sodium azide is more exothermic than that of rubidium azide, because sodium ion का रेडियस स्मॉलर है, तो सोडियम एजाइड में चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा। due to smaller ionic radius of sodium ion, sodium azide has high charge density, so it exhibits strong electrostatic attraction. Next question, iron has an atomic number 26. Complete the electronic configuration for the iron atom and the iron ion in the +3 oxidation state. Iron atom का atomic number 26 होता है, ये हो गया argon, ये हो जाएगा 3d6 4s2। अगर 3+ चार्ज है तो इसका मतलब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 3d becomes 5। फिर उसके बाद है Fe3+ ions can act as a homogeneous catalyst in the reaction between S2O82 negative and iodide ions. What is mean by homogeneous catalyst? When reactants and catalysts exist in same physical state, write an equation for the overall reaction between this S2O82 negative plus 2I negative arrow I2 plus 2 sulfate ions. Suggest why in the absence of catalyst the activation energy of this reaction is high, because ये दोनों के दोनों particles negatively charged हैं, so they will experience electronic repulsion. Because both the particles are negatively charged, so they will experience electronic repulsion. Write two equations to show how Fe+ ions can catalyze the reaction between these two ions. Equation 1 में क्या होगा? 2Fe3 plus 2 iodide ions I2 plus 2Fe2 plus. फिर उसके बाद है 2Fe2 plus aqueous plus S2O82 negative aqueous arrow sulfate ions plus 2Fe2 plus.
Part C. Iron trioxide can be reduced to iron metal using carbon monoxide at temperature of 1000 degrees Celsius. ये इक्वेशन है, डेल्टा एच की वैल्यू -43.6 है. Some relevant standard entropy are given. What is mean by the term entropy? It is a measure disorderness of the system. Calculate the standard entropy change. ये हो जाएगा S नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मूला. यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास कौन कौन से Fe और Fe की एनर्जी है +27 क्योंकि उसके 2 मोल्स हैं इक्वेशन में, इसलिए इनटू 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास 214, उसके 3 मोल्स हैं इसलिए इनटू 3 करेंगे, माइनस रिएक्टेंट में Fe2O3 है +90, कार्बन मोनोऑक्साइड 198 है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्योंकि 3 मोल्स हैं, तो यहाँ से बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा +12. यहाँ लिख दीजिए +12. इसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. डेल्टा एच की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, -43.6. टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, उसमें 273 ऐड करूंगा तो इट बिकम्स 298 केल्विन. एंट्रोपी चेंज +12 निकाला है मैंने, उसको क्लोज यूज में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो इट्स गोइंग टू बी -47.2. ठीक है. Suggest why the temperature of 1000 degrees Celsius is usually used for this reaction even though the reaction is spontaneous at 25 degrees Celsius. Explain your answer. टेम्परेचर ज्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है. Increasing the temperature increases the effective collision unit time, thus rate of reaction increases. Explain why compounds of transition elements are usually colored. तो आप बताइए. Two different energy groups are obtained due to repulsion between degenerate d orbital and ligand. Electron promotion between these two groups require the photon of
specific frequency, hence its complementary color is observed. Copper is used to make alloys such as brass. Percentage of copper in a sample of brass can be determined by dissolving the sample in concentrated nitric acid and reacting the mixture with potassium iodide. The resulting solution is then titrated. A 1.75 gram sample of the brass was dissolved in excess dilute concentrated nitric acid. The reaction of the copper metal in the brass with the concentrated nitric acid releases a brown gas formed in a bruised green solution. Write the equation. तो बेटा ये होगा आपके पास कॉपर है, अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दूं तो इट विल टर्न टू कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड and water. The resulting solution was neutralized and made up to 250 cm cube in a volumetric flask with distilled water. An excess of aqueous potassium iodide was added to 25 cm cube portion of the solution to liberate iodine. The resulting solution required 22.4 cm cube of 0.1 mole per dm cube sodium thiosulfate to reach the iodine produced. The reaction taking place in the titration. Okay. Calculate the percentage of copper by mass in the sample to 3 significant figures. Okay. Moles of S2O32 minus, मुझे वॉल्यूम पता है 22.4, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.1 से और डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको 1000 से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 2.24 into 10 to the power -3 मोल्स। हम जानते हैं कि थायोसल्फेट आयन और आयोडीन के दरमियान अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन रेशियो 1:2, बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि आयोड, ये देख रहे हैं थायोसल्फेट और कॉपर आयंस, इन दोनों के दरमियान रेशियो 2:2 का है, ठीक है, यानी रेशियो 1:1 का समझ लीजिए, 2:2 और 1:1 इज द सेम थिंग, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से 2.24 into 10 to the power -3 मोल्स कैलकुलेट किया है, तो बताइए मोल्स ऑफ कॉपर आयंस कितने हो जाएंगे यहाँ से, 2.24 into 10 to the power -3 मोल्स। अब ये जो मोल्स आपने कैलकुलेट किए कॉपर आयंस में, ये 25 cm क्यूब में कैलकुलेट किए, तो 25 cm क्यूब कंटेन 2.24 into 10 to the power -3 मोल्स। आपने ये 25 cm क्यूब कहाँ से लिया था, 250 से, तो हम 250 में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2.24 into 10 to the power -2 मोल्स। ठीक है, मास ऑफ कॉपर निकाल लेते हैं, मोल्स हमें पता चल गए, तो मास ऑफ कॉपर निकालने के लिए मैं कॉपर के AR से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 63.5, ये हो जाएगा 1.42 ग्राम।
परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर निकालना है तो 1.42 डिवाइडेड बाय 1.75 जो कि इनिशियली हमें गिवन था क्वेश्चन में इनटू 100, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 81.3। ठीक है, the phosphate buffer system operates in biological cell. The buffer contains dihydrogen phosphate, which acts as a weak acid. Write an expression for the K of this. बेटा अगर आप K A की वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होगा, ये हो जाएगा HPO42 minus HPO plus की concentration over H2PO4 negative. What is mean by the term buffer solution? A solution in its pH will be constant even upon the addition small amount of acid or alkali. Write two equations to show how a solution containing a mixture of this and this acts as a buffer. तो मैंने आपको पढ़ाते हुए कहा था कि जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा वो एसिड होगा, इसका मतलब ये बेस से रिएक्शन करेगा। जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है वो सॉल्ट है, वो हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर लिखेंगे H2PO4 नेगेटिव, ये एसिड है, तो एल्कली से रिएक्शन करवाओगे विच इज OH नेगेटिव आयंस, ये वाटर बनाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा HPO42 नेगेटिव से। अब HPO42 नेगेटिव आपका सॉल्ट है, ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा H2O4 नेगेटिव। चार्जेस का ख्याल रखना होगा, 2 माइनस है तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन होगा, और अगर एक माइनस चार्ज है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, द पीएच इज इन मेनी लिविंग सेल इज 7.4, ये इक्वेशन गिवन है, ये उसकी K की वैल्यू है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेशियो नीडेड टू गिव अ पीएच ऑफ दिस। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहला काम मैं pK की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। Ka की वैल्यू कितनी है, 6.31 इंटू 10 टू द पावर -8, तो यहाँ से pKa की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास 7.2। अब हेंडरसन इक्वेशन है, ये देगा pH इक्वल्स टू pKa माइनस लॉग, अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एग्जामिनर ने दिया है तो मैं सॉल्ट ओवर एसिड लूंगा, तो मैं लूंगा प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pK की वैल्यू 7.2, pH की वैल्यू 7.4 गिवन है, तो मैं यहाँ से इन दोनों का रेशियो डिटरमाइन कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 1.22। The H2PO4 negative ion can also act as a base. Write an equation to show this acting as a base. अगर acting as a base है तो इसका मतलब प्रोटॉन डोनेट करेगा ये अपना, बेस है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, H2PO4 नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब H प्लस आयन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में। फिर वो आपसे कह रहे हैं HPO42 नेगेटिव आयन कैन आल्सो एक्ट एज एन एसिड। इक्वेशन टू शो
एक्टिंग एज एन एसिड, तो बेटा ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एल्कली से रिएक्शन कर लेगा, और जब एल्कली से रिएक्शन करेगा तो वाटर बनाएगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा फॉस्फेट आयंस। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज oleocanthal Q is a natural compound found in olive oil. It has antioxidant and anti-inflammatory properties and is thought to have a protective effect against Alzheimer's disease. Right? इसमें फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है और ये एल्कीन है। तो कह रहा है Q shows optical and cis trans isomerism. On the structure of Q above, circle the functional groups that show cis trans isomerism and indicate a steric on the chiral carbon atom. Steric ये रहा, और ये बेसिकली आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है। Q can be isolated from olive oil partition between two solvent. Explain what is mean by the term partition coefficient. बेटा आप बताएंगे यहाँ पर, it is a ratio of concentration of solute in two different solvent at equilibrium. He's saying 40 cm cube of hexane was shaken with 10 cm cube of solution containing 0.25 gram of Q in 10 cm cube of methanol. It was found that 0.06 gram of Q was extracted into the hexane. Calculate the partition coefficient of Q between hexane and methanol. बेटा आपके पास 0.25 ग्राम ऑफ Q है, इसमें से मैं ये कह रहा हूं कि 0.060 gram of Q is dissolved in 40 cm cube of hexane. So मैं बेसिकली यहां से कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकता हूं, 0.060 डिवाइडेड बाय 40 ग्राम पर cm क्यूब, मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से 0.0015 ग्राम पर cm। ठीक है। आप जानते हैं कि इनिशियली मेरे पास 0.25 ग्राम Q था, उसमें से 0.060 ग्राम डिसॉल्व हो गया इन हेक्सेन, तो बच कितना जाएगा 0.19 ग्राम। ये जो कंपाउंड बचा है ये डिसॉल्व होगा 10 cm क्यूब ऑफ मिथेनॉल में, तो हम लिख देंगे यहाँ 0.19 ग्राम ऑफ Q इज डिसॉल्व in 10 cm cube of methanol। ठीक है। तो मैं यहाँ से कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ, कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.19 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम पर cm क्यूब, ये हो जाएगा 0.019 ग्राम पर cm क्यूब। ना मुझे कंसंट्रेशन मिल गई solute in both the solvent. Now I will plug in the value and we'll get the answer. तो partition coefficient हो जाएगा, अच्छा जिस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में, उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, जो कम डिसॉल्व होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। इसका मतलब मिथेनॉल में ज्यादा डिसॉल्व हुआ है और हेक्सेन में कम डिसॉल्व हुआ है। तो हम कुछ करेंगे इस तरह से कि हम 0.019 लेंगे इन न्यूमरेटर और 0.0015 लेंगे डिनोमिनेटर, और इस तरह से हमारे पास केपीसी की वैल्यू आ जाएगी विच इज 12.7। ठीक है बेटे।
दैट्स आवर आंसर। इसके बाद वो पार्ट सी कह रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं जरा यहाँ से स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्ट कर लूँ सो दैट मुझे आगे बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन Q रिएक्ट्स विद द थ्री रिएजेंट्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद देखते हैं कि एक्वस ब्रोमीन किससे रिएक्शन करेगा। तो एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगा क्योंकि फिनोल ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगा, ऑब्वियसली एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगा और एक OH यहाँ पर ऐड होगा। सही है, ये अदर वे राउंड भी हो सकता है, आप यहाँ OH लगा दें, यहाँ ब्रोमीन लगा दें, एग्जामिनर उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हुआ है, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जो भी चाहो लिख के दे दो एग्जामिनर को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उसके बाद है NaBH4, आप जानते हैं NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे आप, तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास एल्डिहाइड है ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, यानी ये भी OH और ये भी OH। ठीक है, अच्छा इसके बाद और टाइप ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली रिडक्शन होगा क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा, मुझे पहले मैं सिखा लूं फिर मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, ठीक है, तो मैं बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑफ वाटर हासिल करेगा, OH बना लेगा, ये बेसिकली OH ऑफ वाटर हासिल करेगा और COH बना देगा। अब जाहिर सी बात है मीडियम एल्कलाइन है तो ये भी ये फिनोल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ONA, ये OH आ गया आपके पास, ये मैंने H अलग से दिखा दिया सो दैट यू विल गेट द आइडिया who's getting H and who's getting OH right during this reaction। इसके बाद ये है COONA, ठीक है, ये बॉक्स एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज और ये एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप एज इट इज, फिर ये एज इट इज, फिर ये एज इट इज और फिर ये एज इट इज, ये ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक्चुअली हाइड्रोलिसिस की है एस्टर की, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ओके गाइस, ये पार्ट डी जो है ना हमारे कोर्स में अब नहीं है, नॉट इन कोर्स एनीमोर, ठीक है। Bromobenzene can be prepared from benzene as shown. Name the mechanism of this reaction. बेंजीन पर होने वाले तमाम रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। Draw the mechanism of this reaction. Include all relevant curly arrows, any dipoles and charges. ये बेंजीन देंगे आपका,
हम इसको Br+ से रिएक्शन करवा रहे हैं क्योंकि हैलोजिनेशन का प्रोसेस हुआ है। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ओके, तो एक एच यहाँ पर ऐड कर दीजिए, एक Br यहाँ दिखाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉटेड लाइन एंड पॉजिटिव चार्ज। ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। बट गाइस यहाँ से बताइए कि ये हाइड्रोजन चला गया और ये बॉन्ड रिंग में शिफ्ट हो गया। ठीक है, हैव टू बी वेरी केयरफुल। Two isomeric aromatic compounds V and W each contain 3 functional groups, 2 of which are shown in the table. ठीक है, ये भी अमाइड लिंकेज है और इसमें भी अमाइड लिंकेज है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें CO बेंजीन के साथ अटैच है, इसमें NH बेंजीन के साथ अटैच है। इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, व्हिच मींस बोथ ऑफ देम आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कंप्लीट द टेबल विद द अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन V and W। तो बेटा इन दोनों में अमाइड होगा, इसमें भी अमाइड है, इसमें भी अमाइड है। ठीक है, नेक्स्ट, compound B and W can be synthesized from a bromobenzene by the following routes. Suggest reagents for each step 1 to 4. Okay, step 1 में देखिए CH3 इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब अल्काइलेशन हो गई। जब अल्काइलेशन होगी तो अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एज अ रिएजेंट एंड एल्स रिएजेंट, सिर्फ रिएजेंट मांग रहे हैं। लेकिन मैं कंडीशन भी लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आंसर कंप्लीट दे रहा हूँ मैं। स्टेप टू में देखो। ओके, मेरी बात बहुत ध्यान से सुना। हाँ, अमाइड फॉर्म हुआ है। Amide is formed, according to my lecture, according to my notes, amide is formed when amine reacts with carboxylic acid. इसका मतलब ये जो S है ये carboxylic acid होना चाहिए। And carboxylic acid is formed when PCl5 is treated with acyl chloride, यानी यहाँ पर acyl ग्रुप होना चाहिए। सही है, बात समझ में आ रही है? दोबारा से सुनिए, ये amide है। Amide is formed when amine react with acyl halide. And acyl halide is always formed when carboxylic acid reacts with PCl5। तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये एसाइल हैलाइड होगा। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका मतलब CH3COH ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये हो जाएगा KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। स्टेप 3 में क्या हो रहा है? ओके, स्टेप 3 में देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब नाइट्रेशन। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है आपको। स्टेप 4, अब स्टेप 4 देखिए, आप अमाइड बना रहे हैं और अमाइड बनाने के लिए आपने इथेनॉल क्लोराइड यूज किया है। अगर इथेनॉल क्लोराइड यूज किया तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन किसके साथ होगा? अमाइन के साथ। इसका मतलब इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना होगा, एंड फॉर दैट आई विल यूज tin concentrated HCl and reflux condition. Reduce the structure for R and RS and T। तो बेटा हमने कहा था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। फिर PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, और जब NO2 को रिड्यूस करोगे तो इट विल टर्न टू NH2 and Br। ठीक है,
Draw the structure of the two organic products from the reaction of B and W with lithium aluminum hydride. क्योंकि lithium aluminum hydride reducing agent है, which is why ये CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और ये CO भी कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में. इसका मतलब सारी चीजें एज इट इज रहेंगी. तो हम यहाँ से स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर लेते हैं. ठीक है. इसके बाद ये है हमारे पास. मैं इसको रिड्यूस करा के दिखाता हूँ अभी आपको. अब अगर मुझे रिडक्शन करनी है तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा. देखो CH2 में. ठीक है. और ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2. सही. सब कुछ एज इट इज रहा है, सिर्फ मैंने CHCO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया. इसके बाद नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग बिटवीन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड दिस. तो बेटा रिडक्शन हो रही है. B and W can be hydrolyzed using hot HCl. Draw the structure of the two organic products of hydrolysis of W. तो अगर ये अमाइड है तो मैं यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ. ये हाइड्रोजन हासिल कर लेगा और ये OH हासिल कर लेगा. ये बनेगा CH3COOH और दूसरा बनेगा बेटा आपके पास Br. ये NH2 है. जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा HCl से तो इट विल टर्न टू NH3 प्लस MCl माइनस. The product formed from the hydrolysis of W are soluble in aqueous acid, whereas a precipitate X is formed on hydrolyzing B. Draw the structure of compound X. Okay, draw the structure of compound X. सही है. तो अभी तो देखो, अगर मैं यहाँ से इसको हाइड्रोलाइज कर देता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है इसलिए वो सॉल्ट बनाएगा. तो ये बनेगा कम से कम ये बेंजीन, ये Br, ये COO, ये Na. ठीक है. मैं ये कह रहा हूँ. ये कह रहे हैं ना. मैं वहां सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ. ये कह रहा हूँ. देखो मैं यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ. ये जो OH है ये ऑक्सीजन है, ये OH हासिल करेगा, ये H हासिल करेगा. राइट. तो प्रोडक्ट बनेगी तुम्हारे पास Br, CO, ये OH आ गया प्लस CH3 और ये NH2 आ गया. सही है. अब जाहिर सी बात है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं. ठीक है. तो फिर तो बेटा ये COH ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. ठीक है. So just why X is insoluble in water because of a strong hydrophobic character.
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, due to strong hydrophobic character, और आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं या कम होगी, सिर्फ एक ग्रुप करेगा, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कह रहे हैं आपसे कंपाउंड F is a carboxylic acid. F contains 31.4% oxygen by mass and its mass spectrum has a molecular ion peak at 102. Use all of this information to show that the molecular formula of F is this. Show all your work. बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं, इसका मतलब COH ग्रुप होगा, and COH का ग्रुप has a mass of 45 ग्राम। MR आपको 102 दिया हुआ है, उसमें 31.4% ऑक्सीजन है, तो 102 का 31.4% निकाल लो, तो 102 MR है, उसका 31.4% होगा 0.314, ये हो जाएगा 32। इसका मतलब ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया 32 से। देन अगर MR 102 है और उसमें से 32 ऑक्सीजन है तो बच कितने जाएंगे, 70। ये 75 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सही है, और जाहिर सी बात है आपके पास 70 है और 60 मास कार्बन 5 कार्बन एटम का है, तो 10 आ जाएगा आपके पास। ये जो 10 है ये 10 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। There are 4 possible structural isomers that are carboxylic acid. The first isomer has been drawn, ठीक है। बेटा चीजें कुछ इस तरह की हैं कि आप जानते हैं कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले तो 5 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता हूँ, CH3 CH2 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 COH, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो स्केलेटल बना के दिया एग्जाम में, जिसका मतलब हमें भी स्केलेटल बनाना है, एंड दिस वन इज COH। अच्छा, अब जाहिर सी बात है हाइड्रोकार्बन चेन है तो इसमें चेन आइसोमेरिज्म बन सकता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली ब्रांच को उठाकर इस कार्बन एटम पे शिफ्ट कर देता हूँ, राइट। हम ये भी तो कर सकते हैं कि ये वाला कार्बन एटम जो है वो इस वाली कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर दें, तो इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, बेसिकली ब्रांच चेन आइसोमर हैं सारे के सारे। गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ आइसोमर 1। जानते हैं बेटा ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो सेकंड कार्बन एटम के ऊपर क्योंकि मिथाइल ब्रांच है इसलिए 2 मिथाइल बोलूंगा, और 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड इज ब्यूटेनिक एसिड, so 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 को एक एसिड भी लिख सकता हूँ, और 2 मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, F is one of the 4 structural isomers in B1. A carbon 13 NMR spectrum of F is shown. अगर कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम में है और ये 3 पीक्स हैं तो इसका मतलब 3 केमिकल एनवायरनमेंट है। वो कह रहा है यूज द स्पेक्ट्रम टू आइडेंटिफाई आइसोमर F, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर इन द बॉक्स। 3 पीक्स किसमें आएंगी बेटा, ये फर्स्ट पीक होगी,
ये सेकंड पीक होगी, ये थर्ड पीक होगी, ये फोर्थ पीक होगी। ये गलत हो गया क्योंकि इसमें 3 पीक्स नहीं आ रही है। ये फर्स्ट पीक हो गई कार्बन की, ये सेकंड पीक हो गई कार्बन की, ये थर्ड पीक हो गई, और ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, फोर्थ पीक। तो ये भी गलत हो गया। ये फर्स्ट पीक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर बेटा ये होगा, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट पीक आ गई, ये सेकंड पीक आ गई, और इन तीनों की मिलाकर थर्ड पीक आ जाएगी। तो बेसिकली हम इस स्ट्रक्चर को दोबारा से लिख देते हैं, क्योंकि ये इस स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं, यूज द डेटा बुकलेट एंड योर नॉलेज ऑफ कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टू आइडेंटिफाई the environments and hybridizations of the carbon atom responsible for each of the 3 absorptions. ये जो 3 absorptions हैं इनकी बात कर रहा है। ये जो आपके पास absorption है ये तो COH की है, ठीक है। और hybridization of carbon atom is sp2 क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। फिर 41, तो 41 is basically this carbon and carbonyl, तो carbon next to carbonyl, ये हो जाएगा बेटा आपके पास sp2 hybridization, सॉरी sp3, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। फिर 27 जो है वो इन तीनों कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज CH3, और इसकी पी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp3, सिंगल बॉन्डेड है, राइट। फिर उसके बाद आपके पास है G is another of 4 structural isomers in B1. The proton NMR spectrum of G is shown. ठीक है। Use the data booklet and the spectrum to complete the table below. Total number of peaks कितनी है, 4। इसका मतलब 4 peaks होनी चाहिए प्रोटॉन की। तो 4 पीक्स तलाश करते हैं कि इसमें से किसकी आएंगी। ये फर्स्ट पीक हो गई, ये सेकंड पीक हो गई, ये थर्ड पीक हो गई, ये फोर्थ पीक हो गई। यहीं से 4 पीक्स मिल रही है, ठीक है। तो यही आंसर है। आइसोमर जी ये है आपके पास CH3 CH, ठीक है। ये आ गया आपका जी CH3। अब वो कह रहे हैं यूज द डेटा बुकलेट एंड द स्पेक्ट्रम टू कंप्लीट द टेबल ब्लू। द एक्चुअल केमिकल शिफ्ट फॉर द 4 एब्जॉर्प्शन इन जी इन द स्प्लिटिंग पैटर्न इज दिस, एडेड फॉर यू। ओके, ये क्या है आपके पास, CH3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 होंगे। स्प्लिटिंग पैटर्न, इस CH3 के नेबर में जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये नहीं, एक मिनट, एक मिनट, 4 पीक्स कह रहा है ना, नहीं ये नहीं होगा बेटा, ये इसमें तो ज्यादा आ रही है, प्रोटॉन NMR में ज्यादा आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ये नहीं होगा। फर्स्ट प्रोटॉन की पीक की हो गई, सेकंड प्रोटॉन की पीक की हो गई, थर्ड प्रोटॉन की पीक की हो गई, और इन दोनों को मिलाकर फोर्थ प्रोटॉन, तो बेटा ये होगा इस, यस दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 11.5, 11.5 CWH की पीक होगी, एक प्रोटॉन होगा, और जाहिर सी बात है इसके ऊपर N+1 रूल अप्लाई करेंगे तो ये सिंगलेट देगा, ठीक है। इसके बाद ये कार्बन एटम है, इसके साथ कार्बोनाइल अटैच है, तो CH2, CO, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होंगे, और जाहिर सी बात है इन 2 प्रोटॉन्स के नेबर में जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये डुप्लेट लेगा। उसके बाद ये CH है,
इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, इस एक प्रोटॉन के नेबर में 2 and 6 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो मल्टीप्लेट देगा ये, हेंस प्रूफ मल्टीप्लेट आ रही है। और ये दोनों CH3 को रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं? 3। मुझे पता है ये 6 हैं, लेकिन 3 प्रोटॉन्स को शो करके दूंगा मैं। स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? डुप्लेट, क्योंकि नेबर में एक प्रोटॉन है। ये देखिए, इन 6 प्रोटॉन्स के नेबर में जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये डुप्लेट देंगे। तो आप यहाँ 2CH3 6H भी लिख सकते हो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिहाज से वैसे यहाँ 6H होना चाहिए, क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम और गिव द फॉर्मूला ऑफ अ सुटेबल सॉल्वेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ प्रोटॉन इन अ मास। बेटा सुटेबल सॉल्वेंट तो आपको पता है ना, या तो CCl4 लेते हैं हम, या फिर CdCl3 लेते हैं। So we are done with the paper.